Hello friends, so here we are with ancient history lecture, and in this lecture we will only talk about those topics which are essentially very important, recurring in the prelims paper. And I have done a 30 years thorough analysis of question paper, identify certain topics which are coming again and again. It is not possible to cover ancient history deeply even in 20 days, but this video will definitely help you to solve 50-60% of questions. And I will only talk about those things which are recurring, which are essentially most important. I will start with Indus Valley, and I will move slowly towards the Vedic age. Then I will move towards the Mahajanapadas, then Mauryas, Sakas, Kushanas, Greeks. Then I will move towards the Satavahanas, other post-Mauryan kings, Guptas, kingdoms in Deccan. Okay, Chola, Chera, Pandya. And the important facts, I will not talk about many of the battles, etc. I will talk only about those things which is repeatedly focused by UPSC. So this is a must watch for everyone. Even if you don't like ancient history, just listen it. It will hardly take 30-40 minutes of of your precious time, but definitely will help you to solve. Even if you are very weak in ancient history, at least 2-3 questions it will definitely help you. And if you have a decent touch, then this will brush up all the important information. Okay, let's start. So first fact which is important for Indus Valley civilization is they never used spoked wheels. Spoked wheels, you understand? See, there are, you would have seen, this is spoked wheels. Okay, this was used by Aryans. इससे क्या होता है? Speed increases. ठीक है, और जो उनका होता था इंडस वैली में, उसमें स्पोक्स नहीं होते थे, स्पोक्स वर एब्सेंट. ठीक है, तो वो लोग क्या यूज करते थे? सॉलिड व्हील्स. दैट यू हैव टू रिमेंबर. हॉर्स नहीं था वहां पे. ठीक है, हॉर्स नहीं था. डॉग्स, कैट्स, बफेलो, पिग्स, काउ, कैमल सब थे. हॉर्स डालेंगे, इवन दो कुछ कुछ एविडेंस मिले, बट अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं हॉर्स का. ठीक है, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे. इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी कुछ फाइंडिंग देख लेते हैं. अगर हड़प्पा में जाएंगे तो ग्रेनरी जो मिली है, 2 rows of 6 ग्रेनरीज इज फाउंड इन दी हड़प्पा. ठीक है, और रेड सैंडस्टोन टोर्सो जो एक फोटो थी, ठीक है, सैंडस्टोन की बनी हुई मेल की, आपने देखा होगा जिसमें द टमी इज कमिंग आउट, ऐसा एक इमेज एनसीईआरटी में दिया होता है. दैट वाज फाउंड इन हड़प्पा. और 2 types of burial has been found that shows the stratification. Then comes Mohenjo-daro. Most of the important things have been found in the Mohenjo-daro, like the Pashupati seal, bronze dancing girl, great path, or symmetry have not been found in the Mohenjo-daro. Here it has been found, but in Mohenjo-daro it has not been found. Lothal dockyard, and the 2 artificial dockyard have been found. Very important fact. ठीक है, डबल ब्यूरियल एविडेंस फाउंड हुआ है यहाँ पे. ओके, एंड कॉटन ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट रहा लोथल. ठीक है, बियर्ड मेकिंग के लिए भी हुआ है. एंड 2 terracotta medals of Egyptian mummies have been found here, so this can be included. धोलावीरा, this has been asked by UPSC. ठीक है, मेगालिथ ब्यूरियल, मेगालिथ स्टोन्स होते थे, मतलब ऐसे मान लीजिए ब्यूरियल है और एक ये बड़ा सा स्टोन. ठीक है, ये हुआ और नीचे ये ब्यूरियल हुआ, इसे बोलते हैं मेगालिथिक ब्यूरियल्स. तो दिस हैज बीन फाउंड वेयर? दिस हैज बीन फाउंड इन धोलावीरा. मैरीटाइम ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर है, रहेगा ही, पोर्ट एरिया पे है. ठीक है, एंड वेयर हाउसिंग जहाँ पाई गई. अब देखिए, जहाँ ट्रेड होगा तो वहाँ वेयर हाउस भी होगा. धोलावीरा में वेयर हाउस भी दिखा है. राखीगढ़ी जो है, दिस इज इन हरियाणा. राखीगढ़ी इज इन हरियाणा. इंडस वैली साइट्स जितने भी इंडिया में है, द लार्जेस्ट वन इज दी राखीगढ़ी. मैन्युफैक्चरिंग सेंटर रहा है टेराकोटा के लिए. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं चान्हुदाड़ो में. चान्हुदाड़ो इज नोन फॉर कॉटन टेक्सटाइल. एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर टूल्स आर फाउंड. कालीबंगन, कालीबंगन में मिक्स्ड क्रॉपिंग का एविडेंस मिला है. प्लगिंग करना जो फील्ड में होता है वो कालीबंगन में इसका एविडेंस मिला है.
फायर अल्तार का भी एविडेंस कालीबंगन में मिला। ठीक है, अब थोड़ा सा मैप देख लो। मैप में देखो, पहले तो ईस्ट टू वेस्ट देखें तो ये देखो कितना वेस्टर्न मोस्ट ये दिख रहा है ना आपको, सुदकेन दौर। ठीक है, ये आपको दिखा ना सुदकेन दौर, ये यहाँ पे दिखा। एंड उसके बाद अगर आप बढ़ते जाओगे थोड़ा थोड़ा तो देखोगे यहाँ पे आपको बालाकोट दिख रहा है। ठीक है, फिर जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बताऊंगा, बहुत सारे हैं। मोहनजोदाड़ो आप देखोगे यहाँ पे है, मोहनजोदाड़ो इज हेयर, मोहनजोदाड़ो इज हेयर। चन्हुदाड़ो ये रहा। ठीक है, चन्हुदाड़ो का ये रहा। हड़प्पा इधर जाके और ईस्ट में जाके। ठीक है, मोहनजोदाड़ो यहाँ है, हड़प्पा इज हेयर। ओके, कालीबंगन ये रहा। ठीक है, बनावली ये रहा, राखीगढ़ी ये रहा। ठीक है, एंड द ईस्टर्न मोस्ट इज दी आलमगीरपुर। ठीक है ना, आलमगीरपुर इधर है। ठीक है, लोथाल ये रहा, धोलावीरा इज हेयर। सो अगर ईस्ट में देखा जाए तो हड़प्पा जो है वो मोर ईस्टर्न देन धोलावीरा एंड लोथल, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ऐसा ये फंसाएंगे यहाँ पे। मोहनजोदाड़ो इज वेस्टर्न, अगर हम देखा जाए धोलावीरा और लोथल से। ठीक है, ऐसे सजाने दे देंगे। और ये जो आसपास है ना, आसपास कौन से है देखिए, बानावली पहले है, राखीगढ़ी बाद में, और कालीबंगन उससे पहले। ठीक है, बानावली राखीगढ़ी, दिस यू रिमेंबर, इतना काफी है। ये सब नहीं पूछते हैं, and we should not cram too many facts. Now coming to the Vedic age, Vedic age में टेबल है, उसमें सब दिया है। ठीक है, अर्ली एंड लेटर वैदिक। सो देखिए, अर्ली वेद में सिर्फ ऋग्वेदा बना था, लेटर वैदिक में साम, यजुर, अथर सब बने थे। देन इन अर्ली वैदिक एज आयरन वाज नॉट यूज्ड, लेटर वैदिक एज में आयरन यूज किया गया। आयरन यूज किया गया तभी तो प्लग्स आए आयरन के, एंड देन द फार्मिंग इंक्रीज एंड प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज। एंड नोमैडिक थे पहले, वो इधर जाते थे उधर जाते थे। जैसे ही आयरन प्लग आया तो उन्होंने खेती स्टार्ट की, प्रॉस्पेरिटी बड़ी, सेटल होने लग गए। और तभी एक ट्राइबल किंग से राजा का जो सफर होता है, अब देखिए अगर सेटलमेंट एक परफेक्ट नहीं होगी, प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी तो टैक्स नहीं आएगा, टैक्स नहीं आएगा, सेटलमेंट नहीं रहेगी तो पावर कहाँ से आएगी, फिर वो परमानेंट टैक्स लेने लगते हैं, उससे फिर किंगडम में इम्प्रूवमेंट आती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अर्ली वैदिक नोमैड थे, काऊ रखते थे ज़्यादातर, गौविष्टी। ठीक है, ये सेटलमेंट शुरू हो गई क्योंकि खेती आ गई आयरन के कारण। और एग्रीकल्चर था मोस्टली, ट्राइबल टाइप था जो मैंने बोला। इधर किंग विंग आने लग गए, बड़ा हो गया। पहले जो वर्शिप होता था अर्ली वैदिक एज में नेचुरल फोर्सेस का, जैसे कि नेचुरल क्या, जैसे इंद्र को नेचर का माना जाता, बारिश वगैरह इन सब से। वरुणा जल हो गए। ठीक है, सोमा वाज प्लांट। तो ये सारी चीजें जो है वो उस टाइम पे होती थी, तो नेचर वर्शिप था। बट जैसे ही लेटर वैदिक आया तो प्रजापति, जो जिसको आप शिवा भी बोलते हैं आज के टाइम में, एंड प्रजापति क्या थे, मतलब जो एनिमल्स होते हैं ना उनके संरक्षक। एंड विष्णु, आइडल वर्शिप आने लग गई। अर्ली वैदिक में आइडल वर्शिप नहीं है, लेटर वैदिक में आइडल वर्शिप है, ये आपको रिमेंबर करना है। कास्ट सिस्टम रिजिड नहीं थी, अनटचेबल का कोई फॉर्मेट नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक में सब शुरू हो गया। और ट्राइब था वहां पे। ठीक, इधर फिर अब जैसे ही अब यहाँ पे क्या होगा कि यू विल सी दैट स्ट्रेटिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है एंड इट बिकम्स रिजिड। तभी उसके विरोध में श्रमण ट्रेडिशन, सेक्ट्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, ये सब दे विल कम अंडर कन्फ्लिक्ट एंड दे विल ओरिजिन। ठीक है, सप्त सिंधु रीजन में देवर देयर अर्ली वैदिक में, लेकिन फिर इंडो गंगेटिक की तरफ जाते हैं तो फर्टाइल लैंड यहाँ पे दे सेटल। ठीक है, विमेन पोजीशन वाज फार बेटर इन अर्ली वैदिक एज। सभा एंड विधाता दे यूज्ड टू अटेंड। तो विधाता तो डिसकंटिन्यूड हो गया एंड सभा एंड समिति कंटिन्यू रहा। विमेन का कोई भी अब जो है अटेंडेंस पॉसिबल नहीं था। ठीक है, बलि पहले लेते थे। ठीक है, टैक्स हो गया, फिर फिक्स हो गया। ये तो मर्सी वाला हो गया ना, गिफ्ट टाइप हो गया, एंड दिस वाज फिक्स्ड। गोल्ड को हिरण्य, कॉपर आया, आज आयरन। ठीक है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विडो रीमैरेज, लेवरेट, सोरोरेट, ये सब चीजें होती है ना, ये वहां पे थी प्रेजेंट। फोर वेदा की अगर हल्का बात कर लें तो ऋग्वेदा ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड कहा जाता है। इट हैज 1028 हिम्स एंड 10 मंडल्स। यजुर्वेदा डील्स विद द वे टू परफॉर्म रिचुअल्स। So, इसमें देर आर सुक्तास, इसमें कैसे किया जाए रिचुअल्स दिए हुए हैं। सामवेदा म्यूजिक का वन ऑफ द अर्लीस्ट माना जाता है ये।
ठीक है। और बोला जाता है कि इंडियन म्यूजिक हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम सामवेदा। अथर्वा को पहले दे डू नॉट कंसीडर वेदा, ठीक है, क्योंकि इसमें ना स्पेल्स हैं, चार्म्स हैं, थोड़ा थोड़ा आयुर्वेदा ट्रीटमेंट ये सब भी दिया हुआ है। एंड इट ओरिजिनेटेड, कहा जाता है कि जंगल से ओरिजिनेट हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो इन द बिगनिंग अथर्ववेदा को वेदा ही नहीं मानते थे, बाद में तो द इम्पोर्टेंस इंक्रीज। और फिर इफ यू विल सी द इंडियन temples as well, तो certain temples are associated with the Rig Vedas, जैसे वैष्णो देवी टेम्पल हो गया, and certain temples are associated with अथर्ववेदा, जैसे कामाख्या टेम्पल हो गया। तो ये आप थोड़ा देख सकते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ चुके हैं कि अब हर वेदा के लिए जो एक पंडित होता था, प्रायश्च, दे वर डिफरेंट, ठीक है। तो उनके नाम जैसे हैं, जो होत्री होता था, होत्रीवास और ऋग्वेदा। होत्री किसका होता था? ऋग्वेदा का होता था। जो अधरवायु होते थे वो होते थे यजुर्वेदा पंडित, उदगात्री सामवेदा के लिए होता था। और ब्राह्मण जो हम अभी यूज करते हैं, दैट वाज फॉर दी अथर्ववेदा। ब्राह्मण अथर्ववेदा के लिए यूज किया जाता था। होत्री, ऋगा, अधरवायु, यजुरा, उदगात्री, सामा एंड ब्राह्मण अथर्ववेदा के लिए। और कोई टेक्स्ट जैसे क्या है, ब्राह्मणास होती हैं, तो जो सेक्रीफाइसेस दिए हुए ना, इट वर एलोबरेटेड, उसकी मीनिंग क्या होना चाहिए, उसको पूरा डिटेल्ड मैनर में ब्राह्मणास में लिखा जाता था। एंड देन कम्स द उपनिषद, इट इज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, इट डील्स विद द मेटाफिजिकल थिंग्स, इट डील्स विद द मेटाफिजिकल थिंग्स। उपनिषद्स इंडियन फिलोसफी का क्रक्स अगर आपको जानना, इट इज नॉट डीलिंग विद द सैक्रिफाइसेस, आइडल वर्शिप, इट डील्स विद ओनली द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स। 108 है। एंड आर्यनकास बुक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसा बोला जाता है कि दे वर रिटन इन द फॉरेस्ट। बोला भी जाता है ग्रेट इंडियन एपिक्स महाभारत एंड रामायण वर आल्सो कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत सारे यज्ञ हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटी में अगर हम ये देख लेते हैं, ठीक है, पुरोहित प्राइस्ट को बोलते थे सेनानी कमांडर, ये तो आप गैस भी कर लोगे। अक्षवापा ये नहीं गैस कर पाओगे, अक्षवापा अकाउंटेंट को बोलते थे, अक्षवापा अकाउंटेंट को बोलते थे। भागादुगा टैक्स कलेक्टर, दीज आर आस्क्ड, दीज आर ना ऑलरेडी आस्क्ड। एंड एंशिएंट हिस्ट्री कैनॉट बी चेंज ना ओवरनाइट, सो क्वेश्चंस गेट रिपीटेड, थीम्स गेट रिपीटेड इवन इन द ऑप्शंस। मध्यमसी, मीडिएटर इन मध्यमसी, ये सब ना हिंदी में यू कैन गैस, बट इफ यू आर नॉट फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग सो यू शुड रिमेंबर दिस। मध्यमसी वाज मीडिएटर इन डिस्प्यूट्स। 3 असेंबलीज जो थे, सभा वाज ओनली few elders, some women were also included, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में इट became a small body, women was not allowed। विधाता मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबली, women were present। सेकुलर होता था, रिलीजियस भी होता था, एंड मिलिट्री पर्पस भी, all 3 purposes disappeared in later Vedic period। Samiti gained significance only during end of early Vedic phase, not present in later Vedic phase, not present in later Vedic phase, ठीक है। तो ये इसमें वुमेन का प्रेजेंस बहुत था, ये आपको याद रखना होगा। कॉइन्स देख लो, शतमाना सिल्वर कॉइन या निष्का। शतमाना किसको बोलते थे? सिल्वर कॉइन को। निष्का गोल्ड कॉइन हुआ, शतमाना हो गया, सिल्वर कॉइन्स हो गया। दे आस्क कॉइनेजेस, सो एंड दे यूज्ड टू कॉल सर्टेन नेम्स। जो अभी के रिवर है उनका कुछ और नाम होता है, जैसे सिंधु तो इंडस अभी भी है, ठीक है। दिशादवरी बोलते थे घग्गर रिवर। घग्गर रिवर हैज अ वेरी ह्यूज इंपॉर्टेंस इन द इंडस वैली एंड अराउंड इंडिक सिविलाइजेशन, सो इसे बोला जाता है दिशादवरी। शतुद्री सतलज कैन बी गेस्ड, विपास ब्यास कैन बी गेस्ड, but this cannot be guessed, this you should remember। परुष्णी रावी, परुष्णी रावी। अश्किनी, अशिकनी चेनाब, अशिकनी चेनाब। एंड वितस्ता झेलम, वितस्ता झेलम। सो परुष्णी रावी, अशिकनी चेनाब, वितस्ता झेलम। परुष्णी रावी, अशिकनी चेनाब एंड वितस्ता झेलम। महाजनपदा पे आते हैं, तो इसमें से कुछ देखिए। इनको ये भी बोला जाता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड, ठीक है। तो वो पॉटरी ये भी बोला जाता है, वेयर पॉटरी, ठीक है। ऐसा ये पूछेंगे नहीं। सेकंड अर्बनाइजेशन फर्स्ट कौन था? इंडस वैली। फर्स्ट कौन था? इंडस वैली। गनाज बोलते थे, ओलिगैर्की टाइप था, ठीक है। महाजनपदा आपने देखा होगा, बुद्धा भी एक संघा से आते थे, ओलिगैर्की से आते थे, लिच्छवीज में, ठीक है।
Now, Anguta Nikaya is a famous book. किसका है? You tell me. बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ठीक है? निकाया जाता है, बुद्धिज्म होता है. You should remember this. Part of Sutta Pitaka mentioning Mahajanapada. So, Anguta Nikaya is a Buddhist text. It mentions about Mahajanapadas. Then Bhagavati Sutra is Jainism text mentioning Mahajanapada. So Anguta Nikaya में, which is a Buddhist text, mentions about Mahajanapada. Bhagavati Nikaya Jainism text mentioning Mahajanapada. Points अगर देखा जाए तो Satamana silver points, Nishka again the same thing. Okay. अब देखो यहाँ पे थोड़े से किंगडम ऐसे दिखा देता हूँ मैं. अंगा इज इन बिहार. अंगा इज ऑल्सो रिलेटेड टू करना, ठीक है? करना से रिलेटेड है, ठीक है? रिवर शायद ये चंबा रिवर के साइड में, एक बार आप चेक कर लेना. ये मगधा है. मगधा का प्रोमिनेंस क्यों है? बिकॉज ये देखिए झारखंड है, झारखंड रीजन. यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है? एलिफेंट्स बहुत सारे हैं, एलिफेंट्स हैं. आयरन मिल रहा है यहीं पे. फॉरेस्ट तो वुड भी मिल रहा है. इधर देखोगे राजगिरी के टाइप होते हैं ना, इधर से माउंटेन्स भी हैं, ठीक है? हिली एरिया भी है. वाटर का दुर्ग है. ये देखिए ये पूरी नदी बह रही है, तो कैन ट्रेवल एनीवेयर, ठीक है? इन सब रीजन के कारण मगधा गेन प्रोमिनेंस. छेदी यहाँ पे है. अवंती, ये देखिए उज्जैन, यहाँ पे देखिए अवंती. ये सारे यूपी में. वत्सा, काशी, मल्ला, कुशाला, पांचाला, ये रहा देखिए यहाँ पांचाला. कुरु, ये मेरठ के आसपास देखिए कुरु. तो ये सारे मत्स्य इधर हो गया, ठीक है? ये दीज आर दी महाजनपदास. लिटरेरी सोर्सेज में मुद्रा राक्ष का विशाखा दत्ता की है, ठीक है? रिटन इन गुप्ता टाइम्स नॉट मौर्यन टाइम्स. ये दिस यू हैव टू रिमेंबर. और देवी चंद्रगुप्तम भी विशाखा दत्ता ने ही लिखी है. ऑल्सो पुराणास वर रिटन ड्यूरिंग दिस फेज, नॉट द वैदिक फेज, बाद में आई है. Jataka talks about socio-economic condition of Magadha. Then there is Deepavamsa and Mahavamsa, Buddhist text, describes Ashoka's role in spreading Buddhism to Sri Lanka. Divyavadana, Tibetan Buddhist text, Ashoka and his effort to spread Buddhism again. ठीक है? इन सब से ही पता चलता है. During this time, silver पंचमार्क पॉइंट्स, देखिए पंचमार्क वर वन ऑफ द अर्लीस्ट. और इसमें रूलर्स का नाम नहीं होता था, रूलर्स का नेम लेटर ऑन आएगा. देन द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि 3 लैंग्वेजेस वर यूज्ड, प्राकृत, ग्रीक एंड अरामाइक. और जो पिलर्स बनते थे चुनार सैंडस्टोन से बनते थे. 4 स्क्रिप्ट्स, ब्राह्मी, खरोष्टी, ठीक है? मानसेहरा एंड सब्जगिरी इंस्क्रिप्शन में देयर इज यूज ऑफ खरोष्टी. व्हेन यू ट्रेवल नॉर्थ वेस्ट एरिया में, ठीक है? अब तो इंडिया में रहा नहीं, अनडिवाइडेड इंडिया में, सो देयर खरोष्टी स्क्रिप्ट वाज यूज्ड, ठीक है? देन देयर इज ग्रीक, अरामाइक, ये सब चीजें हैं. इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन सारनाथ में धम्माशोक, ठीक है? जो आपको पता है. मस्की एंड गुजारा, अशोका रिवील्ड हिज ट्रू नेम. इन द मस्की इंस्क्रिप्शन एंड इन द गुजारा इंस्क्रिप्शन, देवम प्रियदर्शी जो बाकी में लिखा रहता था, इसमें द नेम अशोका इज रिटन. Then Barbu, Ashoka expressed his faith in Buddhism. बारबू जो इंस्क्रिप्शन, उसमें अशोका ने बोला था कि हाँ मैं बुद्धिज्म, आई बिलीव इन बुद्धिज्म. देन रुमेंदेई इंस्क्रिप्शन, जिसमें लैंड ग्रांट्स, इकोनॉमिक फेवर्स टू मोनेस्ट्रीज के बारे में लिखा हुआ है. एंड मानसेहरा में खरोष्टी स्क्रिप्ट वाज यूज्ड. सो आई एम थिंकिंग अबाउट मेकिंग small lectures for ancient history. So the first part I will stop here itself. Then I will talk about the all other important aspects of ancient history in the other videos that will come very soon. I hope these videos will help you. Thank you very much. Take care. Best wishes.